Hello my dear students, today we are going to do the session ending examination of 23-24 for class 6 science. So here are the questions. Which of the following nutrient is not present in milk? आपको पता है कि मिल्क में सब कुछ होता है, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता. Sunflower oil is used by many people across the world for cooking. What part of sunflower plant is used for extraction of oil? So this is seed. The non-living components of habitat are known as abiotic components. Camels store its food in their hump. The thick layer of fur in the body of animals is one of the adaptations क्योंकि वो पोल्स पे रहते हैं, वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है इसलिए. 1 meter can also be divided into 1000 equal parts. These equal parts are called millimeter. Which of the following is a luminous object? It's firefly. To prevent electric shocks, the magnetic wires are covered with aluminium. No, this is wrong. ये आंसर्स कुछ गलत लगे हुए हैं. तो the correct answer is plastic. So it is written on the right side here. Which of the following is an insulator? Again, plastic is an insulator. Insulator वो होता है जो current को pass नहीं होने देता. The south pole of freely suspended magnet points toward the geographical north. To change newspaper into a translucent object coated with a layer of oil. अगर आप ऑयल को पेपर में लगा देंगे तो ये जो पेपर होगा वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ट्रांसलूशन बन जाता है. Coming to section B, the first question is give one example of source of each of the following nutrients. तो फैट्स के लिए आप ऑयल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टार्च के लिए चपाती, डिटरी फाइबर्स के लिए क्यूकम्बर एंड प्रोटीन्स के लिए पल्सेस. Question number 12 is explain why speed is important for survival in a grassland. तो स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट है ग्रासलैंड में सर्वाइव करने वाले जानवरों के लिए? बिकॉज अगर वो दौड़ेंगे नहीं तो अपनी जान को नहीं बचा सकते. टू डिफीट द हंटर्स एंड टू सर्वाइव देयर. नेक्स्ट एक डायग्राम आपको दे रखा है, ABC लिखा है. तो जो सी पार्ट है ये आपका एयर का कॉम्पोजिशन है. सी पार्ट इज योर नाइट्रोजन 78%, A part is your oxygen 21% and B part is carbon dioxide and other gases. So here match the following is there. First is meter. तो मीटर को आप किससे मैच करेंगे? SI unit of length. हैंड स्पैन को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. रेक्टिलिनियर मोशन इज शोन बाय द मोशन ऑफ अ बस ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड सर्कुलर मोशन इज motion of the tip of the blade of a fan. How is a compass useful to find directions? Here is the answer. A compass is used to find directions. The red point indicates the north and the blue point indicates the south direction. Whenever it is freely suspended, it always points toward the north and south direction. So this you have to write in order to get 2 marks. It's a 2 mark question. आपको उतना लिखना भी पड़ेगा. Fill in the blanks. A wind vane is also known as. Wind vane सुनकर आप confused जाएंगे. वो जो weathercock है वो आपको लिखना है यहाँ पर. It is weathercock, moves in the direction of air. Dash is one of the organisms who live in soil and come out during the heavy rain. It is earthworm. Why do policemen often wear mask while regulating traffic or crowded roads? क्यों पहनते हैं? तो पुलिसमैन मास्क इसलिए पहनते हैं, उसके 2 रीजंस हैं कि एक तो वो कंटिन्यू गैसेस में रहते हैं जो व्हीकल से निकलती हैं और वो उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. And they are continually exposed to smoke emitted out of the vehicles. Inhaling the pollutants in the smoke may cause breathing and lung problems. That's why they wear mask. What is question 17 है, how is cactus adapted to survive a desert? Write in 2 ways. Cactus कैसे desert में रहता है उसके 2 reason आपको बताने हैं. So here is the answer. क्या cactus special adaptation होती है उसकी leaves में और stems में? Number 1 की जो leaves होती हैं वो spines में बदल दी होती है ताकि transpiration कम हो. और नंबर 2 वाइड एंड डीप रूट्स दैट एब्जॉर्ब रेन वाटर ऑन द सर्फेस एंड रीच द अंडरग्राउंड डीप वाटर. क्वेश्चन 17 हो गया हमारा. क्वेश्चन 18, व्हाई इज हैंड स्पैन नॉट करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग एनी काइंड ऑफ लेंथ? सो हैंड स्पैन एंड क्यूबिट को हम दोनों को ही यूज़ नहीं करते हैं. यहाँ पर हैंड स्पैन पूछा है, कभी आपसे क्यूबिट भी पूछ सकता है. द रीज़न इज सेम, देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. 2 different person may have different measurement for the same length which is not desirable. सो अगर जब कोई चीज़ बदल जाएगी तो वो स्टैंडर्ड तो रहेगी नहीं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते. मूविंग टूवर्ड सेक्शन सी, डिफाइन हैबिटेट, लिस्ट 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग. अ हैबिटेट इज अ नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बता देंगे लिविंग के यूनिक एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, टू ग्रो, टू मेटाबोलाइज, टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई,
टू अडेप्ट इन द एनवायरनमेंट, टू रेस्पायर, ये सारी बातें हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफाइन एडाप्टेशन, हाउ डू एनिमल्स अडाप्ट, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर, कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो क्योंकि फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, प्लांट टेक्स CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आंसर नंबर 21, give 2 examples of periodic motion, so rocking chair, bouncing ball, swinging motion, and 3 students measuring the length of a corridor। तीनों का अलग अलग आंसर है। उसका रीज़न क्या है कि उनके एक तो मेथड में डिफरेंस हो सकता है, उनका स्केल टूटा हो सकता है कोई हैंडस्पैन भी यूज़ कर रहा हो, तो यू हैव टू गिव 2 वैलिड रीजंस। नेक्स्ट इज ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट, शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द क्लोज सर्किट। तो ये 2 डायग्राम्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं और आपको लिखना भी है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। देख सकते हैं आप, ये जो स्विच क्लोज है तो लैंप आपका ग्लो कर रहा है, स्विच अगर ऑफ है तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। मूविंग टूवर्ड सेक्शन डी, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर में आपको कुछ नहीं दिखता, तो क्यों ऐसा होता है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। तो डार्क रूम में तो सोर्स ऑफ लाइट होती ही नहीं है, इसीलिए कोई लाइट ना तो सरफेस पे पड़ती है ना हमारी आंखों में जाती है, इसीलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसमें एक क्वेश्चन और है, लुमिनस और नॉन लुमिनस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हियर इट इज़ द आंसर, लुमिनस वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल सन, फ्लेम, आपका अभी क्वेश्चन 1 में भी था एक फायरफ्लाई, बर्निंग कैंडल। और नॉन लुमिनस में जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि मून, अर्थ की कोई खुद की लाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन शेडो, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग अ शेडो एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो शेडो क्या होती है, जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो रे ऑफ लाइट के पाथ में आता है तो शेडो बनती है। उसकी 3 कंडीशंस है, आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ओपेक मटेरियल चाहिए और एक स्क्रीन भी चाहिए जिसके ऊपर आप उस शेडो को देख सकें। नाउ हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती, वुड एंड स्टोन। ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी सी लाइट पास होती है और हल्का हल्का दिखाई देता है, जैसे बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। एंड ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, दैट इज क्लियर वाटर एंड ग्लास। सो हेयर द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ये नॉर्थ और साउथ दिखाता है। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर इसने बोला है कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए जब मैग्नेट को हम केयर करते हैं, उठाते हैं। सबसे पहले हमें गॉगल्स पहनने चाहिए और कभी भी किसी बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहिए मैग्नेट को, और मैग्नेट को 20 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, अदरवाइज उसकी मैग्नेटिक जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो सकती है। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट इनटू अ टेम्पररी मैग्नेट। कैसे आप एक आयरन को मैग्नेट बनाएंगे, उसके लिए है कि एक आयरन को आपको रब करना है पोल्स के ऊपर एक डायरेक्शन में। इससे क्या होगा कि एक फोर्स बिल्डअप हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाएगी। मैग्नेट के यूजेस क्या हैं कि मैग्नेट को हम मैग्नेटिक कंपास में यूज़ करते हैं, डोरबेल, रेफ्रिजरेटर्स, मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स और टॉयज़ में भी मैग्नेट का बहुत यूज़ होता है।